Next question, students. Prove that limit point x comma y approaches to point 2 comma 7 3xy minus 12y minus 9 equal to minus 51. प्रूव करना कि फंक्शन की लिमिट माइनस 51 होगी और फंक्शन की है 3xy माइनस 12y माइनस 9 ਜਦੋਂ x 2 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਤੇ y 7 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ 2 ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7 ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। 3 * 2 6 * 7 42 minus 84 minus 9 ਤਾਂ 42 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਆਪਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ -42 minus 9 minus 51 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹੇਅਰ ਇੱਥੇ ਟੇਕਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਲੈਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ ਫੰਕਸ਼ਨ f ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ 3xy minus 12y minus 9 ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ in variable x and y ਤਾਂ therefore domain of f ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕੇਲਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ f ਦੀ ਲਿਮਿਟ -51 ਆ ਜਦੋਂ x 2 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਤੇ y 7 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ let f greater than 0 be arbitrary ਸਮਾਨ ਜਾਂ be however ਸਮਾਨ for x -2 ਦਾ ਮੋਡ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ y -7 ਦਾ ਮੋਡ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ xy ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 2 7 ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਪਲਾਈ ਫੰਕਸ਼ਨ f ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਡਕਟ ਕਰਤਾ -51 ਦਾ ਮੋਡ is equal to f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ 3xy - 12y - 9 ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ 51 ਦਾ ਮੋਡ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 3xy - 12y plus 42 ਦਾ ਮੋਡ 51 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਡਿਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 42 ਦਾ ਮੋਡ। ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ x ਆ ਉੱਥੇ x ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ 2 ਤੇ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ y - 7 ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 3 * x - 2 * y - 7। ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ 3xy ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ 3xy ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ -21x ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ x ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ +21x ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਪਰ +21x ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ x ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ x - 2 ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲਿਖਤਾ +21 * x - 2 ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਟਰਮ ਆਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲਿਆ -6y ਜਦ ਕਿ ਉੱਪਰ ਸੀ -12y ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ -6y ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ -6y ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ y ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ 7 ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ -6 * y - 7 ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆਊਗੀ 3 * -2 * -7 ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 42 ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ -42 21 ਨੂੰ ਜਦੋਂ -2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ -42 ਆਪਸ ਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ -6 ਨੂੰ -7 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ +42 तो -6 ਨੂੰ -7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊ 42 ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ 42 ਕਨਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੈਣਾ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 * x - 2 ਦਾ ਮੋਡ y - 7 ਦਾ ਮੋਡ ਪਲੱਸ 21 * x - 2 ਦਾ ਮੋਡ ਪਲੱਸ 6 * y - 7 ਦਾ ਮੋਡ क्योंकि अपन पता स्टूडेंट्स a - b का मॉड लेस देन इक्वल टू a का मॉड प्लस b का मॉड होता और ये नाल भी पता कि अपने को x प्लस y का मॉड लेस देन इक्वल टू x मॉड प्लस y मॉड होता और आप उस कंसेप्ट नाल ये एडजस्ट कर लिया। हुण अपन पता x - 2 का मॉड भी लेस देन डेल्टा और y - 7 का मॉड भी लेस देन डेल्टा तो मैं लिख लिया लेस देन 3 * डेल्टा plus 21 डेल्टा plus 6 डेल्टा अब किधे इक्वल आ गया है 3 डेल्टा स्क्वायर plus 21 डेल्टा plus 6 डेल्टा की बन गया 27 डेल्टा। स्टूडेंट्स इत्थे ध्यान रखो जिवें मैं पिछले दो क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ करवाए सी लेक्चर च ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ डेल्टा ही आ रही सी पावर 1 ਇੱਥੇ डेल्टा स्क्वायर ਹੁੰਦਾ
ये याद रखो जो डेल्टा दी 1 पावर तो इलावा कोई होर पावर आ जाए डेल्टा स्केयर डेल्टा क्यूब डेल्टा दी 4 तो थोनों ये कंडीशन नाल रखनी पैनी है कि डेल्टा लाई बिटवीन 0 एंड 1 ताही आपां डेल्टा स्केयर नूं आपां लिख सकते हैं लैस दैन डेल्टा क्योंकि सोचो जे कोई नंबर 0 तो 1 दे विच होवे फॉर एग्जांपल x नंबर 0 तो 1 दे विच होवे तो डेफिनेटली x स्केयर लैस दैन x होगा फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 1/4 ले तो डेफिनेटली x लाई बिटवीन 0 एंड 1 जो स्केयर करोगे तो 1/16 हो जाएगा जो 1/16 हो गया तो डेफिनेटली 1/4 तो घट होगा तो x स्केयर लैस दैन x बन जाएगा उसी तरह मैं इत्थे लिखता less than 3 delta plus 27 delta if 0 less than delta less than 1 नाला कंडीशन हम 3 delta plus 27 delta किदे बराबर होगा इक्वल टू 30 delta हुन इनो मैं इक्वल टू एप्सिलॉन नहीं लिख सकता स्टूडेंट्स इथे नोट करियो पॉइंट इक्वल टू भी लिख सकता एप्सिलॉन इनो मैं लिखूंगा लेस देन एप्सिलॉन क्यों क्योंकि जे इथे सपोज करो एप्सिलॉन 60 हो टेकन करके चल पे जब स्टार्टिंग तो जे मैं इथे इक्वल टू 60 ले लिया तो 30 डेल्टा नु 60 के बराबर लिखूंगा तो डेल्टा 2 आ जाए जबकि इथे मैं कह रहा हूं डेल्टा y बिटवीन 0 एंड 1 तो डेफिनेटली इथे मुझे लेस देन एप्सिलॉन ही रखना पड़ना इफ 30 डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन दैट इज डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन बाय 30 तो डेल्टा दी दो कंडीशन आऊंगा 0 लेस देन डेल्टा लेस देन 1 दूसरी होगी डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन बाय 30 तो आप ये कह सकते हैं देयरफॉर फंक्शन f दे विचों ਜਦੋਂ डिडक्ट -51 कीता ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਿਲਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਫ 0 ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ 1 ਐਪਸਿਲਨ ਬਾਈ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਸਿਲਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਐਪਸਿਲਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਲੈ ਲਵਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਥੇ 1/15 ਬਣ ਜਾਂਦਾ डेल्टा लैस दैन की बन जाता 1/50 तो मैनू ये दोनों कंसैप्ट में होल्ड करते हुए मैंने इसे लिखना पड़ना 0 लैस दैन डेल्टा लैस दैन 1/50 तो जे मैं वही एप्सिलॉन 60 ला लगा तो इत्थे जिहड़ी सैकंड कंडीशन के मुताबिक डेल्टा लैस दैन 2 आ जाता 60/32 आ जाता तो मैनू इन्हां दोनों कंडीशन 0 लैस दैन डेल्टा लैस दैन 1 और डेल्टा लैस दैन 2 वास्ते मैनू ये कहना पड़ना सी 0 लैस दैन डेल्टा लैस दैन 1 तो डेफिनेटली इत्थे मैं कहता 0 लेस देन डेल्टा लेस देन मिनिमम ऑफ केड़े दो एलिमेंट्स चों 1 ते दूसरा एप्सिलॉन ओवर 30 तो ये जस्ट डेल्टा कर ही जाना इस वास्ते आप कह सकते लिमिट जिहड़ी है x जो 2 नु अप्रोच करदा y 7 नु अप्रोच करदा फंक्शन f दी किदे इक्वल होगी -51 हेंस लिमिट x y पॉइंट जिहड़ा है वो जो 2, 7 पॉइंट करदा 3xy minus 12y minus 9 इधे इक्वल आ गई -51 नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स प्रूव दैट लिमिट x approaching to 0 y approaching to 0 xy over square root of x square plus y square equal to 0 इसनु भी ਆਪਾਂ बाय डेफिनेशन ना प्रूव करना कि फंक्शन जेड़ा xy over square root of x square plus y square उसकी लिमिट 0 के बराबर होती है जो x 0 अप्रोच करता y 0 अप्रोच करता तो देखो हम आप सॉल्व करते हैं लेट मान लो या हेयर कह दो फंक्शन f किदे इक्वल xy over square root of x square plus y square हम जे आप डोमेन देखिए तो सेट ऑफ ऑल अपने कोले पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल होंगे या सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ r स्क्वायर होंगे एक्सेप्ट किया होगा ओरिजिन क्यों क्योंकि स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर ये देखिए तो अपने को 0 0 दोनों आप x ते y दी वैल्यू भर दी तो अपने को डेफिनेटली f अनडिफाइंड हो जाएगा वो 0/0 फॉर्म आ जाएगी और डिनोमिनेटर जिथे 0 बन जाए वो आप पॉइंट ओमिट करने होंगे और डेफिनेटली ये जो ओरिजिन दैट इज x 0 ते y 0 पर भरांगे ये f अनडिफाइंड बन जाए बाकी सारे पॉइंटां वास्ते डिफाइन होंगे तो आप कह सकते डोमेन ऑफ f की है r² एक्सेप्ट 0 0 पॉइंट तो हम अपना लिमिट फंक्शन दी किदे बराबर शो करनी f दी 0 दे बराबर शो करनी लिमिट f दी किदे बराबर करनी है 0 जो x 0 अप्रोच करदा y भी 0 अप्रोच करदा तो डेफिनेशन शुरू कर दे लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी हाउएवर समान फॉर x जो डिडक्ट करांगे 0 दैट इज x दा मॉड लेस देन डेल्टा y जो 0 डिडक्ट करांगे कॉमा y दा मॉड लेस देन डेल्टा
कॉमा पॉइंट एक्स वाई किदे इक्वल नहीं होगा, पॉइंट 0, 0 दैट इज एक्स कॉमा वाई पॉइंट ओरिजिन के बराबर नहीं होगा। इंप्लाई फंक्शन एफ दे विचों डिडक्ट की करना, 0 का मॉड अपने को टेकन कर लिया, इक्वल टू की बन गया एक्स वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 का मॉडुलस। तो ये किदे इक्वल आ गया एक्स वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल दा मॉड। इथों डिनोमिनेटर दे विच मॉडुलस लैण दी लोड़ नहीं, डिनोमिनेटर दे विच जदों मॉडुलस लेता तो दोने अलग अलग कर लो, एक्स मॉड इनटू की बन जाऊगा वाई मॉड ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम वाई मॉड नूं स्टूडेंट्स मैं लिख सकदा का स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर, क्योंकि आपां नूं पता जे ए कोई भी रियल नंबर होवे तां ए दा मॉड जिहड़ा हुंदा वो इक्वल टू किदे हुंदा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। तो मैं इत्थे वाई मॉडुलस नूं लिख सकदा स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सारा स्क्वायर रूट कलेक्ट करने का की बन गया वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे का स्क्वायर। तो मैं इक्वल टू लिखा स्टूडेंट्स एक्स मॉड इनटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हुण इहदे विच कोई डाउट नहीं है कि डिनोमिनेटर तो लार्जर हो सकता, इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। दैट इज वाई ਆਪਾਂ कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो इथों मैं लेस देन इक्वल टू लेना है एक्स मॉड इनटू 1 दैट इज एक्स मॉड। हुण एक्स मॉड किस तो लेस डेल्टा और डेल्टा तो लेस करने तो बाद इक्वल टू ले लिया एप्सिलॉन इफ डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन। तो देयरफॉर फंक्शन f ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਡਕਟ ਜਦੋਂ 0 ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਿਲਨ ਆ ਗਿਆ ਇਫ ਡੈਲਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਪਸਿਲਨ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਹੈ और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो देयरफॉर कह सकते हैं फंक्शन f की लिमिट 0 के बराबर आ गई जो x 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਤੇ y 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ। हैंस xy ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की लिमिट 0 के बराबर होगी जो xy पॉइंट ओरिजिन ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ। तो स्टूडेंट्स फिलहाल आपां इस लैक्चर दे विच यही आपां 2 क्वेश्चनस डिस्कस करांगे ते आपां नैक्सट लैक्चर दे विच जिहड़ी है उस तरह का क्वेश्चन डिस्कस करांगे जिस दे विच लिमिट जिहड़ी है फंक्शन की एडजस्ट नहीं करनी। थैंक यू सो मच।